Good morning, class 12th. After completing moving coil galvanometer, we will study shunt. Actually, this will help you while converting a galvanometer into an ammeter and voltmeter. Okay, so shunt is used in galvanometer. So, first of all, we will learn what a shunt is. Actually, shunt is a low resistance. Shunt is a low resistance. And how it is connected? It is connected in parallel to galvanometer. It is always connected in parallel to galvanometer. And what is its role? Its role is to protect the galvanometer from high currents. Actually, हमने अभी study किया था that in moving coil galvanometer, when any current is allowed to pass through the coil will experience a torque, and due to this torque, coil will rotate. But if the amount of current is high, obviously it may damage the coil of galvanometer. So to protect the galvanometer from direct high currents, we use a bypass low resistance, and that low resistance is known as shunt. Now, what will be the effect of presence of this shunt? We can understand it by this diagram. This is the galvanometer, and I is the amount of current to be measured. But the amount of current allowed or amount of current required for full scale deflection means full turn of the coil, the amount required is Ig. If this current directly pass through this galvanometer, it may damage the coil of galvanometer. So what we will do? We have connected a low resistance shunt in parallel to galvanometer. इस galvanometer के parallel में हमने low resistance shunt को connect किया है. Then what will happen? When current I is flowing through it, this is the junction A. इस junction पर current दो branch में divide होगी, Ig and this second branch. The value of shunt is chosen in such a way that amount of current flowing through the galvanometer is Ig, and the remaining amount of current get bypass through the shunt. Shunt का resistance low है, इसलिए करंट के लिए ये पाथ इजी होगा, तो मैक्सिमम करंट इस शंट के थ्रू बाईपास हो जाएगी और ए वेरी स्मॉल करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर आपको इस करंट के लिए डिफ्लेक्शन देगा. ओके, सो व्हेन वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, ए मेजर पार्ट ऑफ करंट will bypass from this shunt and a very small current will pass through this galvanometer. अब इस शंट की वैल्यू कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा आप किस रेंज की करंट को मेजर करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, कितनी करंट को आप मेजर करना चाहते हैं, उसकी जो रेंज है दैट इज करंट आई. ओके, सो वी कैन चूज वैल्यू ऑफ शंट अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आई. आप कितनी करंट को मेजर करना चाहते हैं. ओके, नाउ galvanometer coil offers some resistance, so G is the resistance offered by galvanometer. S shunt resistance connected in parallel. Ig amount of current through galvanometer for which galvanometer shows full scale deflection. ये Ig की वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर के लिए परमिजिबल वैल्यू ऑफ करंट है, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल पूरी तरह से टर्न हो जाती है. मींस वैल्यू ऑफ करंट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो भी वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगी उसमें जो स्मॉलर वैल्यूज हैं दैट इज Ig. सो Ig इज द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन. व्हाट इज I? I इज द टोटल करंट फ्लोइंग और द करंट टू बी मेजर्ड. किस करंट को आप मेजर करना चाहते हैं, दैट इज I. ओके, नाउ इस जंक्शन पर क्या होगा, एट जंक्शन करंट गेट डिवाइडेड. Ig current will pass through galvanometer and remaining current I minus Ig will pass through shunt. Okay, now galvanometer resistance and shunt resistance both are parallel to each other. अगर ये दोनों parallel हैं तो parallel के केस में क्या होता है, parallel के केस में potential difference same रहता है, तो हम एक ही phenomena apply करेंगे. galvanometer resistance and shunt are in parallel combination, hence जो भी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा
सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हाई है तो करंट कम है, अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू हाई होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। So potential difference across G is equal to potential difference across S because both are in parallel combination. So GIG, this is the potential drop, resistance into current, resistance into current. So using this phenomena we can calculate value of shunt required GIG upon I minus IG. I is the value of current to be measured, IG is the value of current through galvanometer for which galvanometer shows full scale deflection, G is the galvanometer resistance. Now इस कॉम्बिनेशन में अगर नेट रेजिस्टेंस RS मानते हैं तो उस केस में दोनों पैरेलल में है, 1 अपॉन RS इज इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, तो RS की वैल्यू हो जाएगी GS अपॉन G प्लस S। ये इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस होगा। तो जितने भी गैल्वेनोमीटर्स हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं दे आर जनरली प्रोवाइडेड विद द शंट कनेक्टेड इन पैरेलल, उन सभी में शंट कनेक्टेड होता है। ओके, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ शंट? शंट अमीटर की रेंज को इंक्रीज करते हैं, सेकंड टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। साथ के साथ एक यूज तो है ही, ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर आप किसी भी अमीटर की रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 एम्पियर रेंज का अमीटर है, आप इसको 5 एम्पियर करना चाहते हैं तो भी आपको शंट लगाना पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर को अगर आप प्योरली अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? शंट अप्लाई करना पड़ेगा। वी विल स्टडी these two topics one by one. Okay, first is ammeter. Already you know that ammeter is a device which is used to measure electric current in circuit. ये circuit में electric current को measure करने के काम आएगा। Obviously it is connected in series, it has low resistance. ammeter का resistance galvanometer से कम होता है। Ideal ammeter have zero resistance और actually ideal ammeter नहीं होता। आइडियली अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, बट जीरो रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली कॉपर कंडक्टर इज ए गुड कंडक्टर बट स्टिल इट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस। ओके, तो अमीटर कॉइल जो भी होगी वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। सो जो शंट है वो इस कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो आपको मालूम है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा डिक्रीज होता है। नाउ if you wish to change or convert this galvanometer into an ammeter, what will you do? That you can convert a galvanometer into an ammeter by connecting a suitable shunt in parallel to galvanometer. galvanometer के पैरेलल में आप एक शंट लगा करके suitable वैल्यू का आप इस galvanometer को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, करंट I is the current to be measured या रेंज ऑफ अमीटर। मैक्सिमम करंट जो आप मेजर करना चाहते हैं वो I है। IG amount of current for which galvanometer coil is full scale deflection, G resistance of galvanometer coil, and S shunt to be connected to convert galvanometer into ammeter. Okay, theory is same. Junction A पर current I divide हो जाती है into two branches, IG pass through galvanometer and remaining current I minus IG will bypass through shunt. And apply same theory, potential difference across S, potential difference across G. So S is equal to GIG upon I minus IG and equivalent resistance of combination ammeter में change किया है। So what is the resistance of an ammeter? GS upon G plus S, G galvanometer का resistance है और S shunt का resistance है। So theory same है जो आपने shunt में use की थी। Now figure of merit। जब आपने एक अमीटर को डिजाइन किया तो आपने उसकी एक पर्टिकुलर रेंज चूज की है। इट इज द करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। एक्चुअली जब करंट अमीटर के थ्रू पास होती है तो वन स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। सपोज देर आर n डिविजन्स ऑन स्केल। आपके पास में एक अमीटर दे रखा है और उस पर आपने n डिविजन्स है, तो फिगर ऑफ मेरिट कितना होगा? गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट पास होती है दैट इज IG, और IG पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है और फुल स्केल पर n डिवीजन है, तो n डिवीजन के लिए जो करंट रिक्वायर्ड है दैट इज IG। तो वन स्केल के लिए कितनी, वन डिवीजन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड होगी? दैट विल बी IG अपॉन n एंड दिस IG अपॉन n इज इक्वल टू K फिगर ऑफ मेरिट। IG इज मेजर्ड इन एम्पियर
N is number of division, so ampere per division. If the current is in milliampere, then it is milliampere per division, or the current is in microampere, then it is microampere per division. Generally, figure of merits, they are in microampere per division. Okay, because very small current pass through the galvanometer. The second thing is voltmeter. A galvanometer can be converted into voltmeter. It is a device used to measure potential difference between 2 points of a circuit. ये सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करता है. एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी? इट हैज ए वेरी हाई रेजिस्टेंस. इसका रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होता है क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होती. दैट इज व्हाई एन आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, बिकॉज आइडियली वोल्टमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं होती. ओके, बट आइडियल ammeter or voltmeter is not possible. A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a very high resistance in series with galvanometer. तो galvanometer के साथ सीरीज में हम एक बहुत एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो उस करंट को इसके थ्रू पास नहीं करने देगा. ओके, बट स्टिल ए वेरी स्मॉल करंट पास थ्रू दिस galvanometer. नाउ V is the range of voltmeter और potential difference to be measured. आपको किस रेंज का वोल्टमीटर बनाना है, आप मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, दिस इज V. G क्या है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. R क्या है? दिस इज द हाई रेजिस्टेंस. नाउ you can see that resistance R and galvanometer, they are in series. So net resistance of combination, resistance of voltmeter, it is R plus G. Suppose A और B के बीच का potential difference V था और V potential difference मुझे measure करना है. गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक small current पास होती है, this is IG. तो अगर IG करंट इस कॉम्बिनेशन से पास होती है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के इक्वल होना चाहिए. सो V इज इक्वल टू I इंटू आर, IG, और करंट कितना हो जाएगा? IG करंट है, R प्लस जी टोटल रेजिस्टेंस है. तो IG से डिवाइड कर दें तो R प्लस जी कितना हो गया? V अपॉन IG. हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, सो R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस कैपिटल G. ओके, so in this way, by connecting the resistance R, we can change a galvanometer into voltmeter. तो जिस रेंज का वोल्टमीटर आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा. नाउ हम दो टॉपिक ले रहे हैं. शंट टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर. किसी एमीटर की रेंज को चेंज करने के लिए हम कैसे शंट अप्लाई करेंगे? ओके, तो सपोज if the ammeter range is to be increased n times its original value. अगर सपोज अभी 1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है और आप चाहते हैं कि ये 3 एम्पियर मेजर करे, तो मतलब ये पहले से 3 गुना मेजर कर सके. तो अगर 3 टाइम्स मेजर कर सकता है तो शंट की वैल्यू क्या होगी? S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1. n क्या है? कितने टाइम्स आपको रेंज इंक्रीज करनी है, ये आप पहले डिसाइड कर लें. How many times you have to increase the range? Suppose पहले 0.5 एम्पियर पड़ता था और अब आप 2 एम्पियर चाहते हैं, तो 0.5 से 2 एम्पियर 4 टाइम्स हो गया, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी. तो S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1. दिस इज द शंट विच इज टू बी यूज्ड टू चेंज द रेंज ऑफ एमीटर. हाँ, ये शंट पैरेलल में ही लगेगा, ये शंट भी पैरेलल में ही लगेगा, जो पहले वाली डिवाइस है उसके पैरेलल में ही लगेगा. ओके, नाउ रेजिस्टेंस टू चेंज रेंज ऑफ, दिस इज नॉट शंट, रेजिस्टेंस टू चेंज रेंज ऑफ वोल्टमीटर. सिमिलरली आप फाइंड करें वोल्टमीटर की रेंज को आप हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हैं. इफ द रेंज ऑफ वोल्टमीटर इज टू बी इंक्रीज्ड n टाइम्स इट्स ओरिजिनल रेंज, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R विल बी n माइनस 1 इंटू G. तो 2 वोल्ट मेजर करता है, आप 5 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं तो 2 से 5 चेंज करना है, मतलब 2.5 टाइम्स हो गया, तो 2.5 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता है, इतना रेजिस्टेंस और आप उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो
वोल्टमीटर की रेंज इंक्रीज हो जाएगी. ओके, so in this way we can change the resistance of a galvanometer or voltmeter by connecting a shunt or a resistance of the given value. Okay, so this is the completion of this chapter. Have a good day.